বর্ডারটা দেখার দায়িত্ব নিল ভারত বিএসএফ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বর্ডার দেখার দায়িত্ব। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয়, বিএসএফ যখন বর্ডার দেখবে আর সিআইএসএফ সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স যারা ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে গার্ড দেবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো গার্ড দেবে, তারা সব দেহরক্ষী হয়ে গেছে। বিএসএফ তো এখন দেহরক্ষী, বিএসএফ আর বর্ডার দেখে না, ওনারা এখন দেহরক্ষী হয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দেহরক্ষী, ভারতীয় জনতা পার্টির অল ইন্ডিয়া সাধারণ সম্পাদকের দেহরক্ষী, সব বিএসএফকে দেহরক্ষী করে দিয়েছে আর সিআইএসএফকে দেহরক্ষী করে দিয়েছে। এ কোন জগতে বাস করছে আমি জানি না। আমি তো জানতাম দেহরক্ষী হয় কারা, যারা আমাদের পুলিশে কাজ করে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, কিংবা যদি বিহারে হয় বিহার পুলিশ, ঝাড়খণ্ড হলে ঝাড়খণ্ড পুলিশ, যারা কমান্ডো হয়েছে তারা ট্রেনিং নিয়েছে তারা হয় দেহরক্ষী। বিএসএফের দেহরক্ষী, সিআইএসএফের দেহরক্ষী খেয়ে গেছে, মুঠো মুঠো দিয়ে দিয়েছেন। যাদের বর্ডার গার্ড দেবেন তারা আপনার বাড়ি গার্ড দিচ্ছে, তাহলে বর্ডারটা ফাঁকা থাকতে হচ্ছে। সেই বর্ডার দিয়ে আর্মস ঢুকছে, আর্মস নিয়ে আসছে পরিকল্পনা করে। এই বিজেপি রাজ্য সভাপতি বেসিক্যালি একটা পাগল, এটা উন্মাদ। চিকিৎসা করানো দরকার ছিল, আমি বলেছি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। ওর সর্বভারতীয় সভাপতির উচিত ওকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের চিকিৎসা করা। আলটিমেটলি নির্বাচনের আগেই ওই রাজ্য সভাপতিকে রাঁচিতে যেত। आज सबसे पहले ये पूछो, ममता बनर्जी पागल हुई है या नहीं हुई है? वो आज मंच के ऊपर खड़े होकर इस तरीके से बोलती है जैसे उनका सब कुछ लुटने वाला है। आज बंगाल उनके हाथ से निकल चुका है, उन्हें इस बात का एहसास है, इसलिए वो इस तरह की कड़वी बातें कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही है। इससे कुछ नहीं होने वाला। देश अब जान चुका है, पूरा देश जान चुका है, पूरा देश के अंदर ये बात चर्चा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, इसलिए वो सब उनको आज तक के खूब उनके जो मज़े आ रहे थे उसके ऊपर एक जो है बीजेपी आकर उसको रोकने वाली है। इसलिए इस चीज़ को लेकर वो परेशान है, वो खुद पागल हो चुके हैं। ममता बनर्जी पागल हो चुकी है, ना कि बीजेपी वाले या कोई और दूसरे लोग पागल। বর্ডার গার্ড দেওয়ার কথা ছিল কার? বিএসএফ তারা এখন দেহরক্ষী, তারা তো বিভিন্ন দেহরক্ষী হয়ে গেছে, তার বর্ডারগুলো ফাঁকা। পশ্চিমবঙ্গের যতগুলো লিডার দেখছেন বিজেপির লিডার, তাদের ঘিরে সংখ্যাটা শুনবেন, তাদের ঘিরে কতজন আছেন? 850 জন। 850 জন কোথা থেকে তুলেছেন? আমাদের বিভিন্ন বর্ডারের বিভিন্ন এলাকা থেকে তুলেছে, কোথাও জঙ্গলমহল থেকে তুলে নিয়েছে, কোথাও বর্ডার থেকে তুলে নিয়েছে। সিকিউরিটি কেন গার্ড হবে? বিএসএফ কেন গার্ড হবে? সিআইএসএফ কেন গার্ড হবে? কেন পুলিশ গার্ড হবে না? পুলিশ চাইলে দেবে না? কে বলেছে? পুলিশ চেয়েছে। প্রত্যেকের পিছনে ঘুরছে 5টা করে গাড়ি, আর্মস নিয়ে ঘুরছেন। তাহলে বর্ডারটা ফাঁকা থাকবে, বর্ডার দিয়ে আর্মস ঢুকছে, সে আর্মস ব্যবহার করবেন, मूर्खे स्वर्ग बास करছে। देश की है, किसी की जो है ना बपोती नहीं है। बीएसएफ जो है एक ऐसी हमारी फोर्स है जो निष्पक्ष रह के काम करती है। ये सब लोग जानते हैं कि आज वेस्ट बंगाल की पुलिस जो है किस तरह का रवैया कर रही है। केंद्र सरकार ने 2 ऑफिसर्स को बुलाया था कि भाई आप ऑन डेपुटेशन दिल्ली आओ, नहीं गए हैं। तो हमें मालूम है ना कि यहाँ पे जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए बीएसएफ का आना ज़रूरी है। और बीएसएफ से जरिए ही यहाँ पे अगर निष्पक्ष चुनाव है तो बीएसएफ ही करा सकती है, बंगाल पुलिस नहीं करा सकती। आर्म्स আমদানি করছে, শুনে রেখে দিন। আর্মস মজুদ করছে, লড়াই করবে বলে আমাদের সাথে মানুষ আছে। सब इस तरह के झूठे, ये जो समय जो है ना प्रचार का है, अब हर कोई अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह की बातें करता है। ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की प्रचार करने वाला जो लोग हैं वो इस देश के भी गद्दार है। अगर कोई ऐसा काम करता है, काम का धंधा करता है, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और ये गद्दारी वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। বিজেপির সুপার সভাপতি আমি জানি আমরা, যে বিজেপি আরেকটা সভাপতি এখানে নিযুক্ত করেছেন, যে রাজ্য সভাপতি রয়েছেন তার উপর একটা সভাপতি নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি হলেন বর্তমান राज्यपाल धनखड़ बाबू। राज्यपाल देखो, राज्यपाल जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है।
वो पश्चिम बंगाल के लिए उनकी सेवा दी गई। वो किसी बीजेपी या किसी आरएसएस या किसी संगठन से उसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल राज्यपाल है और बंगाल के ऊपर जो राज्यपाल की जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करने का उसका काम है। ये सब जो है ना इस तरह के पाखंड जो रच रहे हैं ये गलत है। और इस तरह की बात वो उनको इस बातों से आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अब टीएमसी के वक्त खत्म हो गया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। बीजेपी सुपर सभापति আমি জানি আমরা বিজেপি আরেকটা সভাপতিত্ব করেছেন, যে রাজ্য সভাপতি রয়েছেন তার উপর একটা সভাপতি নিযুক্ত করে দিয়েছেন, তিনি হলেন বর্তমান রাজ্যপাল ধানকর। ये सब जो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि राज्यपाल जो है ना वो देश की बात करता है। बंगाल की जो है ना जो बंगाल के अंदर डिसिप्लिन बना रहे हैं उसकी बात करता है। और दिलीप घोष जो है ना कहीं उस मामले में जो है उसको ये लगता है कि ममता को लगता है कि दिलीप घोष का वो साथ दे रहा है, बल्कि राज्यपाल किसी दिलीप घोष का या किसी ममता बनर्जी का साथी नहीं है। राज्यपाल अपनी सेवा दे रहा है, अपने देश की सेवा कर रहा है, जो उनको जिम्मेदारी दी है वो पूरी कर रहा है। ये सब झूठा है। তবে এটা পরিষ্কার জেনে রেখে দিন, বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভুগতে হবে। এই যে কথাগুলো বলছেন কথা কথা প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এর কিন্তু ফেসানোর বাংলা। ये जो देश है ये भारतीयों का हिंदुस्तानियों का देश है। किसी उसको इस बात को वैसी को समझ लेना चाहिए कि अब भारतीयों का जमाना आ गया। उस भारतीयों में भारत का मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इसलिए उसको जो है ना ये मुसलमानों की जो वो जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति कर रहा है वो चलने वाली नहीं है वेस्ट बंगाल में। मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरह का स्वागत हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे लोग हम चाह रहे हैं, जिस तरह से लोग आगे बढ़ कर काम रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के मुसलमान जो मुसलमान जो है ना आज जो जिस तरीके से निकल गया है। ममता बनर्जी ये सोचती थी कि ये सारे मुसलमान मेरी जेब में है, मेरे वोट बैंक है ये, लेकिन मुसलमानों को आज अपने बारे में सोचने का मौका मिल गया। आज मुसलमान अपने बारे में सोच रहे हैं। उसे देश चाहिए, पश्चिम बंगाल चाहिए, ममता बनर्जी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, भतीजे भांजों को उसने आगे बढ़ाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाया ममता बनर्जी ने। इसलिए मुसलमान ये समझ गया कि हमारे लिए अगर कोई अच्छा हो सकता है, देश की सरकार बनेगी जी, दमदार सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मुसलमानों के सहयोग से मुस्लिम राष्ट्र में उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार बैठा है। इधर की मुसलमान लोग आपको सपोर्ट करेगा बीजेपी को? सब मुसलमान सब बिल्कुल तैयार हैं जी। मैं पूरा 10 दिन का दौरा करने के लिए आया हूँ। अरे मीम कोई एक बात सुनो, वो सिर्फ एक बात सुनो, देश का संगठन चलेगा, देश के नाम पे वो चलेगी दुनिया, ये देश इस पे चलेगी। 2021 में हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब मुसलमानों की साथ मिलकर हम करेंगे। भारत माता की जय।